Dear Lord, we are grateful to you for the privilege and honor you have given us to come to your feet through the study of your word. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान सौभाग्य के लिए जो आपने अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आके बाइबल अध्ययन कर पाते हैं। We confess our weaknesses and fragility. Uh, we know that we can do nothing apart from you. और पिता, हम अपने कमजोरी को और अपनी जो नाजुकपना को हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम आपसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। Cleanse us with your precious blood, fill in us with your spirit, and speak to us as we study your word. अपने लहू से हमें पवित्र कर दीजिए, अपनी आत्मा से हमें शुद्ध कर दीजिए और अपनी आत्मा से भर दीजिए कि हम आपके वचन का अध्ययन करने पाए। Keep us humble and take glory unto thyself. We humbly submit this prayer with thanksgiving in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. बड़ी नम्रता के साथ में हम ये प्रार्थना आपके सम्मुख लेकर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। Amen. आमीन। God has been very kind, and we have been studying the Apostle Paul's missionary journeys. और इन दिनों परमेश्वर हम हमारे ऊपर में बड़े दयालु रहे हैं और हम Uh, सभी लोग इस दिनों में पौलुस की मिशनरी यात्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। I believe you enjoy the study of the Bible. और मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों आप बाइबल के अध्ययन में आनंदित हो रहे होंगे। So, in our previous studies, we have studied how the things went on at Thessalonica and at Berea, at Athens. पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था कि पौलुस की मिशनरी यात्रा में किस प्रकार की घटनाएं थिस्सलुनीकिया में हुआ, उसके बाद बीरिया में और एथेंस नगर में हुआ। So, as we see the word from Acts chapter 18 and verse 1, we understand that Apostle Paul comes to Corinth from Athens, chapter 18 and verse 1. After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. और 18 अध्याय के पहले वचन से हमें ये बात समझ में आती है कि पौलुस एथेंस को छोड़कर उसके बाद कुरिन्थियुस में आए। So, in the map on the screen, you understand that this is the Berea, the area of Berea. This is Berea. So, from Berea, he comes to Athens. This is Athens. From Athens, he comes to Corinth. और आप मानचित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार पौलुस जो है बेरिया से एथेंस को आया और एथेंस के बाद कुरिन्थियुस में गए। So, we are not going to study the background of the city of at Corinth and the people uh, and their history. और हमारे पास समय नहीं है कि हम कुरिन्थियुस की जो पृष्ठभूमि को और वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में हम जान सकें। This we can see when we study the book of Corinth. और ये तब होगा जब हम कुरिन्थियों की किताब को अच्छे से अध्ययन करेंगे। So, at Corinth, Apostle Paul joins with Aquila and Priscilla और कुरिन्थियुस में जो पौलुस है वो अक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ मिलकर काम किए। because the Emperor Claudius commanded all Jews to depart from Rome. क्योंकि जो क्लॉडियस जो वहाँ का गवर्नर था, अधिकारी था, उसने सभी यहूदियों को रोम रोम से बाहर जाने के लिए आदेश दे दिया था। We find this in chapter 18 and verse 2. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all Jews to depart from Rome. और प्रेरितों के काम 18 के 2 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। Please remember this second verse when we study the book of Rome. We will recall our this particular verse when we study the book of Rome. और जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे तो ये जो 18 अध्याय का दूसरा वचन है, इसके अंतिम भाग को हम फिर से वहां पर एक बार विचार करेंगे।
So, verses 1 to 4, we find the testimony of Aquila and Priscilla. तो 1 से 4 वचन तक 18 अध्याय के हम अक्विला और प्रिस्किल्ला की गवाही को देखते हैं। Verse 3, so because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation they were tent makers. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. और 3 और 4 वचन में लिखा है, उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। In those days, Jews had a custom that they adopt some kind of technical trade apart from their own expertise. और उन दिनों में यहूदियों के एक प्रचलन था कि वे लोग अपने विशेष जो हुनरमंद कामों के अलावा भी कुछ कुछ और कार्य भी करते थे। So there was a great influence of Roman soldiers moving from one place to another place because of some reason or the other. They used to order tents, and there was a business for the people, those who can make tents. और चूंकि रोमी सैनिक लोग अपने कुछ कार्यों के कारण एक जगह से दूसरे जगह हमेशा उन्हें जाना पड़ता था, इसलिए उनकी जरूरत तंबू की होती थी, इसलिए ये सभी लोग तंबू बनाने का कार्य को करते थे। So we know that the life and testimony of Apostle Paul, when he was not converted into Christianity, when he was, fairly well in Judaism, he was a learned man at the feet of Gamaliel. और अब जानते हैं कि पौलुस जब सेवा में नहीं आया था, तो उससे पहले वो एक बहुत ही व्यवस्थित यहूदी के रूप में था, और व्यवस्था को बड़ा मानने वाला था, और गमलीएल के चरणों में शिक्षा लेने वाला व्यक्ति था। He was somebody like a Pharisee who is expert in the law of God and busily involved in serving God. और वो एक फरीसी के रूप में व्यवस्था का बड़ा जानकार था और परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ था। But at the same time, he also adopted a technical trade called tent making. और उसी समय पे पौलुस ने एक जो विशेष जो उद्यम है, जिसे हम रोजगार के एक विषय कहते हैं, वो तंबू बनाने का काम भी साथ में करते थे। Jewish people, they were very hard working people. और यहूदी लोग बड़े ही कठिन परिश्रम करने वाले लोग होते हैं। So Aquila Priscilla was also of the same tribe. और अक्विला और प्रिस्किल्ला भी उनका भी यही उद्यम था कि वो तंबू बनाते थे। So when Roman emperor drove away all Jews from Rome, Aquila Priscilla came to Corinth, and Apostle Paul from Athens, he comes to Corinth. When he came to Corinth, he found Aquila Priscilla as Jews, and they were of the same tribe, and so he joined them. और यहाँ पे रोमी शासक ने जो यहूदियों को रोम से निकाल दिया था, उसके बाद अक्विला और प्रिस्किल्ला को भी कुरिन्थियुस में आना पड़ा। और उसी समय पौलुस भी अपनी मिशनरी यात्रा के बाद एथेंस से होता हुआ कुरिन्थियुस में आया, और ये दोनों कुरिन्थियुस में मिल गए, और चूंकि उनका उद्यम एक एक ही था, टेंट बनाने का, इसलिए मिल के तंबू बनाने लगे। And verse 4 says that he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. और 4 वचन में लिखा है कि वह हर शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। So we understand as we read further verses 5 onwards, uh, according to the customary, we have been studying the missionary journeys of Apostle Paul. He first goes to synagogue, and they will reject his teaching and they will drive him away. Then he goes to marketplace, and there he begins to preach the gospel to Gentiles. और हमने देखा कि पौलुस की जो मिशनरी यात्राओं में उसके जो एक रीति क्या थी, कि वो सबसे पहले आराधनालय में जाते थे, वहां पे वो लोगों को सुसमाचार बताते थे। जब लोग उन्हें आराधनालय में स्वीकार नहीं करते थे, तो वो वहां को छोड़कर बाजारों में जाके सुसमाचार प्रचार करते थे, और वहां भी जब लोग उन्हें ध्यान नहीं देते थे, तो वो आगे चले जाते थे। Same thing happened here at Corinth also. और कुरिन्थियों में भी ऐसा ही हुआ।
verse 5 onwards. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit and testified to the Jews that Jesus is Christ. 5 वचन में था, जब सिलास और तिमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। Because Jewish people, they know Old Testament very well, and because they are aware of the prophecies in the Old Testament, and so his uh, the gospel preaching became easy for him. और चूंकि यहूदी लोग पुराने नियम के अच्छे जानकार थे और यहूदी लोग पुराने नियम की भविष्यवाणियों को अच्छे से जानते थे, इसलिए पौलुस को यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने में आसानी हुई। It was just said one line how he preached gospel. और इसीलिए उन्हें बड़े आसानी से एक लाइन में ही सुसमाचार को बताने में उनको सहयोग मिला। I would request any of you in the group and let me know what is that one line you find in verse 5, the way how Apostle Paul picked up a thought to preach gospel to the people of to the Jewish people. और मैं आप सबके निवेदन करूंगा कि आप भी इसको सीखें कि कैसे पौलुस जो है यहूदियों को और सभी लोगों को एक विचार में लाने के लिए किस प्रकार बड़ी सरलता से वो सुसमाचार सुनाते थे। Hope you understand what I'm trying to say. आशा करता हूं कि आप उस विषय को समझ रहे होंगे। In verse 5, we understand that Paul preached gospel to Jewish people in the synagogue on Sabbath days. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्द के दिन में पौलुस जो है आराधनालय में जाके सुसमाचार सुनाते थे। So he just preached gospel with one line. That's what recorded here. What is that one line? और जो एक लाइन जिसके द्वारा वो सुसमाचार सुनाते थे, वो एक लाइन क्या थी? यीशु ही मसीह है। Yeah. Anybody else? Do you all agree with Brother Sridhar? Is there any disagreement? Then you please tell me. Or if you agree, that also you please let me know. Yes, brother. Correct. Yes. And who else? यस अंकल, वो एक लाइन में कहते थे कि मसीह ही है जिसको दुख उठा के मरे हुए Yes. में से जीना था, Okay. इसी वही यीशु Okay. मसीह। Then next line. Suppose if you are asked to preach gospel to Jewish people, and this is a good thought to preach gospel in just one line that Jesus is Christ. Now you tell me, how do you preach gospel to the Jewish people in one line? How do you defend saying that Jesus is Christ? और अब जैसे कि हाँ, वो लोग मैं एक्चुअली मसीहा आएगा करके यहूदी लोग विश्वास करते हैं। पौलुस ये प्रचार कर रहे हैं, आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मसीहा करेगा वही यीशु मसीह है जिसके लिए आप बाट जो रहे करके he was telling like that. Okay. And anybody else? So I think because of the example of resurrection of Jesus Christ, he confidently said that Jesus is Christ. Okay. And anybody else? You are absolutely right. I'm not saying that you're wrong. You are absolutely right. I would like to see if there is any other, approach of the same text. So Silas says John 3:16 in one line. What else? रबी किसकू भाई, आप क्या बोलते हैं? This is something very important. I would like to, discuss. It's easy one man preaching and every other just listening.
if you involve very purposely, I'm actually extending this book of Acts. Normally it takes in 1 or 2 sittings. I can just complete this book of Acts, and then by this time I would have completed many epistles also. But deliberately, I'm so concerned and burdened that to let you know the evangelism, because this book of Acts is loaded with the thoughts about the evangelism. और प्रिय, मैं यहाँ पे आपको समय देकर प्रेरितों के काम के विषय लेकर सुषमाचार को बहुत गहराई से सिखाना चाह रहा हूँ। नहीं तो हम अब कभी थोड़े से दो एक दो तीन क्लास में हम इसको खत्म करके आगे जा सकते थे। तो मैं आपको चाहता हूँ कि यहूदियों को किस प्रकार पौलुस ने वचन सुनाया, या सुषमाचार सुनाने की जो विशेष बात है उसके विषय में आप मेरे से चर्चा करें और बताएं। I think most of you switched off your videos. Maybe if your network is poor, that is fine. If your network is fine, I request you to please open your videos. Let us see face to face, because we are offline, and we will try to understand how the Apostle Paul's missionary journey, and how he was concentrating, how he was preaching gospel in different perspectives. तो आप लोगों में से जितने लोग का नेटवर्क अच्छा है, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को देखकर अभी चर्चा कर सकें कि पौलुस अपनी मिशनरी यात्राओं में कैसे यहूदियों को और अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। If you have to preach gospel saying that Jesus is Christ, how do you preach gospel? अगर आप कहते हैं कि यीशु ही मसीह है, तो आप इस बात को कैसे कहेंगे? Uncle, 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Christ died for our sins, buried, rose again, and he is seated on the throne. He is going to come again. Okay, what else? I think, Uncle, we said that all prophecy in Old Testament is completed by Jesus. That is why he is Messiah, he is Christ. ओके ओके, रागिनी सिस्टर जी, आप क्या बोलते हैं? अनम्यूट कर लीजिए पहले। पहले नहीं नहीं, अनम्यूट कीजिए सिस्टर। पहले अनम्यूट करना चाहिए। बताइए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अच्छा। और एंड नारायण ध्रुव। प्रभु यीशु मसीह का नाम हुआ है और वो परमेश्वर के No, we are not able to hear you. Maybe your network is poor. Okay, Arvind Suryavanshi bhai. Unmute, brother. Unmute, brother. यहूदी लोग मानते थे कि प्रभु मसीह आने वाला है, इसलिए पौलुस उसके ऊपर जोर दिया कि जिस प्रभु मसीह के बारे में आप बोल रहे हो वो आ चुका है और उसी के द्वारा ही उद्धार है। Yeah. Anybody else wants to give a try? रवि किसको बात नहीं किया भाई? सुखदेव भी बात नहीं किया है। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। इसमें गवाही पौलुस प्रेरित दे रहे हैं कि यीशु ही मसीह है। तो मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इसलिए उन्हें यीशु ही मसीह ही करके क्या है ना, उन्होंने गवाही दे रहे हैं, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है। रवि किसको भाई, कैन यू लिसन टू अस? हाँ, आवाज पहुंच रहे ना? ठीक है, पहुंच हाँ, रहे। बताइए। जीसस इज क्राइस्ट। क्योंकि जीसस हमारे लिए क्रूसिफिक्शन हुआ, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारा उद्धार दिया, मुक्ति दिया, उसके लिए
उनको हम लोग क्राइस्ट बोलते हैं। Okay, so I will do one thing. I'll ask question in a different way. Who crucified Jesus Christ? यहूदी लोग। यहूदियों ने। Their own YouTube total Jewish uncle. Yes. Why did they crucify Jesus Christ? Because they don't accept as a Messiah. Okay. Now you can tell the gospel. Apostle Paul was trying to emphasize saying that Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth who became, a human. In fact, he is divine and human. That is what he was trying to say. So, but they did not accept because Jesus Christ, brothers and sisters, they have been seeing. So they expected Messiah in a different perspective. They expected a lion, like, just mm, uh, throw down the Roman emperor and then immediately, taking the kingdom as a king of kings and lord of lords, and disciples becoming, their partners in ruling. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जो आत्मिक जो है, मतलब ईश्वरीय स्वभाव यानी कि परमेश्वर है करके और मनुष्य करके दोनों को एक समय में वो प्रस्तुत कर रहा है। जबकि यहूदी लोगों ने उसे मसीहा के रूप में ग्रहण इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके भाई बहन और थे, और वो आकर इस संसार में बहुत सिंह के समान प्रकट नहीं हुए, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मसीहा के रूप में नहीं अपनाया। So Jesus claimed himself that he is God. We have seen those four gospels, but they did not accept his claims. They felt he is blaspheming. और हमने देखा कि चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया और उसका अंगीकार भी किया, लेकिन यहूदियों ने किसी भी रीति से उनके इस अंगीकार को स्वीकार नहीं किया। They did not accept his claims because they treated him as only ordinary human being. They could not understand that God becoming man is something impossible. और जितने भी प्रभु यीशु मसीह उनके सामने घोषणा करते थे उनको उन्होंने नहीं अपनाया, और यहूदियों ने उनके ऊपर ईश निंदा का आरोप लगाया क्योंकि वो उन्हें एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते थे और नहीं समझे कि परमेश्वर मनुष्य कैसे बन सकता है। They remember how God came down to Mount Sinai. They knew how Moses could not face God, how he trembled, and they remembered how God appearing to them during daytime as cloud, following them above, and the pillar of fire during night times. They remember the Shekinah glory in the Holy of Holies. और प्रियो, यहाँ पे यहूदियों ने याद किया कि कैसे सीनै पर्वत पे परमेश्वर उतरे थे, तो मूसा इतना डरने लगा और वो परमेश्वर को देख भी नहीं पाया, उसकी महिमा का सामना नहीं कर पाया। और कैसे परमेश्वर दिन को बादल के खंभे के रूप में और रात को अग्नि के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई किया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ऐसी जो है पहचान जो है परमेश्वर के लिए यहूदियों के मन में थी। They know the judgments of God to the sons of Aaron, how his two sons were killed because of fire coming from heaven and then scorching them and fell dead. They remember how Uzzah died, then and there, by mishandling the Ark of the Covenant. और वे यहूदी लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर ने न्याय किया और हारून के दोनों पुत्रों के ऊपर में उनका परमेश्वर का क्रोध आया और वो मारे गए। और साथ ही उज्जिया भी जब वाचा के संदूक को स्पर्श किया, जबकि बैलों ने ठोकर खाई, तो उसके कारण उज्जिया भी मारा गया। और महापवित्र स्थान में सकाइना ग्लोरी, इन सब के बारे में यहूदी लोग अच्छे से जानते थे। They also know the scriptures how the very earth was, quaked, a big gap, so much so that
the Korah and his sons and the family members were absorbed into the earth. The earth, its mouth was opened, and then they all fell into that earthquake and then died. They remember. और यहूदियों को अच्छे से वचन याद था कि कैसे कोरह और उसके जो वंशज थे, जब उन्होंने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, तो कोरह और उनके पूरे परिवार तंबू सहित कैसे पृथ्वी के में समा गए, क्योंकि पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर उन्हें निगल लिया था। The Old Testament, they know very well, the God of judgment, the God of fury, the God, and his majesty and his great awesomeness, they know very well. और पुराने नियम की विषय में यहूदियों को बहुत अच्छे से ज्ञान था कि परमेश्वर जो है वो न्यायी है, महान है, अद्भुत चमत्कार और सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। They could not relate such great, awesome God when Jesus said that I am the Son of God, I am the Son of Man, and he proved in many ways, but still they could not accept him as God. They thought he was blaspheming. और परमेश्वर से संबंधित अगर हम यीशु मसीह को देखें, तो यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, और कई बार इसे उनके सामने आश्चर्य कर्म और अपनी गवाही और अंगीकार के द्वारा प्रकट भी किया। लेकिन यहूदियों ने कभी भी इन बातों को देखकर उन्हें परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु उन्हें परमेश्वर की निंदा करने वाला व्यक्ति कहा। Now, I would like to request every one of you to do a homework. मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने लोग हैं, आप एक होमवर्क करें। You please do homework, and the next Thursday, before the next Thursday, you can post it in the group. What is that homework? You must try to explain how Jesus is Christ. और आप सबके लिए होमवर्क है, आप अगले हफ्ते जब गुरुवार की हमारी सभा होगी, उसमें आप क्लास शुरू होने से पहले आप सभी लोग बताएं, अपने तैयारी करके अभिव्यक्त करें, वर्णन करें कि यीशु कैसे मसीह है। So you are not trying to convince me, you are trying to convince your Jewish audience. Suppose you are speaking to Jewish audience and you are presenting gospel to them, the way how Apostle Paul presented gospel to the Jewish people at synagogue at Corinth, you will also, present in that way. You prepare a notes or prepare, the logical progression by taking the Old Testament prophecies and its fulfillment in your own words. और आपको करना क्या है, आपको मुझको नहीं समझाना है, मुझको आप कन्विंस करने की कोशिश ना करें, परंतु आप ये समझें कि आप यहूदी श्रोताओं के बीच में सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। आप ये सोचें कि जैसे पौलुस ने कुरिन्थिस के आराधनालय में जाके यहूदियों को किस प्रकार सुसमाचार प्रस्तुत किया, उसी प्रकार आप भी सुसमाचार को एक तार्किक क्रम में तैयार करें, ताकि आप पुरानी नियम की भविष्यवाणियों के अनुसार बता सकें कि यीशु ही मसीह है। I don't know whether you could understand my presentation when I, gave it in the context of Apostle Paul preaching gospel to the people at Athens. और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं जिस प्रस्तुति को आपको दिया हूँ कि कैसे पौलुस जो है कुरिन्थियुस की कलीसिया में अपने आप को प्रस्तुत किया, उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। So, if you have to preach gospel to Gentiles, pagans, or idolaters, you can use the model at Acts chapter 17, the model of Apostle Paul preaching gospel to Athens, the people at और Athens. और जब आप अन्य जातियों को प्रचार करते हैं, यूनानियों को प्रचार करते हैं, अन्य देवी देवताओं को आराधना करने वाले लोगों को प्रचार करते हैं, तब आप एथेंस में पौलुस ने जिस प्रकार प्रचार किया, उसके उदाहरण को देखकर आप प्रचार करना सीख सकते हैं। If you have to preach gospel to nominal Christians, if you have to preach gospel to the Jewish people, you can take this model at Apostle Paul preaching gospel to Corinth, just in one line, Jesus is Christ. और अगर आप किसी नामधारी मसीहों के बीच में प्रचार कर रहे हैं या किसी यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, तो आप कुरिन्थियुस की कलीसिया का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पौलुस कहते थे कि यीशु ही मसीह है। Some of you in the group of, your professionals and did doctorates,
and highly educated, you know the science and technology much. If you have to preach gospel to the university students, how do you preach gospel? और आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, विज्ञान और तकनीक के बारे में अच्छे से जानने वाले लोग हैं। कभी आपको अवसर मिल गया और आप विश्वविद्यालय के छात्राओं को अगर सामना किए, वहां पर आपको सुषमाचार प्रचार करने का मौका मिला, तो कैसे करेंगे? That means if you are addressing atheists, those who say that there is no God at all, it's all naturalism, the Darwinian philosophy, and how do you preach gospel to such audience? और अगर आपके सामने कुछ नास्तिक लोग आ जाएं, या ऐसे लोग जो प्राकृतिकवाद को मानते हैं, वो सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, या फिर जो डार्विन के सिद्धांत को मानते हैं, ऐसे लोग अगर आपके सामने आ गए तो उन्हें कैसे सुसमाचार आप सुनाएंगे? So I humbly request you to make notes. How do you present gospel to different audience? It's not easy just saying that Jesus died for you, he was buried and rose again. That's what the Bible says. People don't believe that because their background is different, their understanding is different. और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अलग से नोट्स बना के तैयारी करें, क्योंकि अलग अलग श्रोताओं को सुसमाचार सुनाने का तरीका अलग होता है। अगर आप हर व्यक्ति को एक ही बात कहेंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो मृत्यु को हरा के जी उठा इसलिए वो मसीह है, तो लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप सुनाने वाले लोगों की पृष्ठभूमि और उनकी समझ के बारे में समझें, तब आप उन्हें कैसे सुसमाचार तैयार करना है इसकी तैयारी करके आप उन्हें सुनाएं। So if you do your homework enough, then you will be able to answer their questions. और अगर आप अपना होमवर्क सही करते हैं, अर्थात अपनी अच्छी से सुषमाचार की तैयारी करेंगे, तब आप ऐसे कई लोगों के सवालों का उत्तर दे पाएंगे। So it's not enough to preach gospel and then quit, but you should be able to answer their questions if their questions are genuine, and you should be able to answer their questions and present Jesus Christ intelligently. और ऐसा नहीं है प्रियो कि केवल आप सुषमाचार सुनाएं और उन्हें ऐसे ही छोड़ के चले जाएं, परंतु समझदारी करके, समझदार के रूप में आप उनके सवालों का भी उन्हें उत्तर दें और ऐसे समझदारी से सुषमाचार सुनाएं। But we will never compel anyone. We will never force anyone. That is not our responsibility. That is not our duty. Bible never says that you force people, you convert people. No, conversion is not our job. Conversion is the work of God. और हम किसी भी व्यक्ति को समझाते समय दबाव न डालें, ना ही हम किसी विषय को बलपूर्वक उन पर लागू करने की कोशिश करें, क्योंकि परिवर्तन का काम हमारा नहीं है, परिवर्तन का काम परमेश्वर का है। What do we get if they become Christians? Nothing. We just get nothing. We nobody pays us anything. We don't work for anybody. We work for God. God told us to preach gospel. We are preaching. That's it. और कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन बन जाने से हमें कोई फायदा नहीं होता है, और इसके लिए हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ये परमेश्वर की सेवा के रूप में हम करते हैं, कि हम परमेश्वर की सेवा सेवा समझ के लोगों को सुसमाचार सुनाएं। If people are converted, Bible says only they are the people who believe in Jesus Christ, they will go to heaven. Those who do not believe in Jesus Christ, their sins are not forgiven. They have to pay for their own sins in the eternity. That's what they do in hellfires. और प्रियो, अगर हम किसी व्यक्ति को समाचार सुनाते हैं और कोई परिवर्तन हो जाता है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो जरूर उन्हें ईश्वर के राज्य में उन्हें जगह मिलेगी। अगर लोग विश्वास नहीं करेंगे, पाप करेंगे, तो उन्हें नरक की आग में, उस नरक की आग की झील के अनुभव में जाना पड़ सकता है। ये एक लोगों का विकल्प है। There is a lot of misunderstanding about conversion. और परिवर्तन को लेकर लोगों के अंदर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के विचार हैं। People think that conversion means a change of religion. लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति का परिवर्तन होता है, वो वास्तव में धर्म का परिवर्तन होता है। I'm sorry, Christianity is not a religion at all. और मैं एक चीज बता दूं आपको प्रियो, कि मसीहत जो है वो कोई धर्म नहीं है। Conversion means horrible sinner becoming saint. और परिवर्तन का मतलब होता है कि एक गंभीर रूप से पापी व्यक्ति संत बन जाए या भक्त बन जाए।
Bible very clearly says that all human beings are born with sinful nature. और बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि हर मनुष्य पापमय स्वभाव के साथ ही जन्म लेता है। This explanation can be understood when we study Genesis chapter 3. और ये बात हमें तब पता चलता है जब हम उत्पत्ति की किताब तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं। Whatever I am saying, it's not my own theology or my own, framework of understanding. और जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये मेरी विचारधारा नहीं है, ये मेरे द्वारा तैयार की हुई बातें नहीं है। As a Bible teacher, I am trying to explain you what Bible talks about it. और एक बाइबल शिक्षक होने के नाते जो बाइबल कहती है वो बातें आपको सिखाना मेरा काम है। Because every person is born with sinful nature, and they prone to do sin, they commit sin, and as they keep committing sin, they become slaves. And God is holy God, and holy God will definitely punish sin. That's what the bad news means. और प्रियो, हम जानते हैं कि जो जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं वो पाप के स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनके अंदर पाप करने की इच्छा होती है और वो पाप करते भी हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि वे पाप के गुलाम बन जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन लोग जब पाप के गुलाम होंगे तो परमेश्वर का दंड उन पापियों पर प्रकट हो जाता है। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। People may ask a question: who should take responsibility? Human beings born with sinful nature. God is responsible, not me. That's what normally people say. और लोगों को हम पूछेंगे कि मनुष्य पापी पैदा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो लोग कहेंगे कि सीधा सीधा कि परमेश्वर इसका जिम्मेदार है। Actually, what happens is son will inherit a father's nature. और सामान्यतः होता क्या है प्रियो, कि जो संतान होती है उनके अंदर में उनके पिताओं का ही जो स्वभाव है वो वंशानुगत हो जाता है। So, because Adam and Eve they rebelled against God, they lost the presence of God. They were alienated from God, and they rejected God. They declared independence, and their spiritual were died. और हम देखते हैं कि आदम और हव्वा जो है मैं जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, अलग हो गए, और उन्हें परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया और एक प्रकार से आत्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई। So all human race are born to Adam and Eve. और चूंकि पूरी जो मानव जाति है वो आदम और हव्वा से ही जन्म लिए हैं। So whatever human nature Adam and Eve had, every descendant of Adam and Eve carry on the same nature. और चूंकि सारे मनुष्य के आदम और हव्वा के ही संतान हैं, तो स्वाभाविक है आदम और हव्वा की जो पाप में स्वभाव है वो हर एक मनुष्यों के ऊपर आ सकता है। So that is the first question answered. तो ये है पहला सवाल और उसका उत्तर। So God is not responsible because a person is born with sinful nature. इसलिए इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है कि मनुष्य पापी पैदा होता है। A simple illustration like this: a dog will beget dog, a cat will beget cat, a fox will beget fox, and uh, every tree has its own fruit, and fruit again has the same tree when it is sown. और इस बात को समझिएगा प्रियो कि कुत्ते से कुत्ते का जन्म होता है, बिल्ली से बिल्ली का जन्म होता है, लोमड़ी से लोमड़ी का जन्म होता है, और हर एक पेड़ से उसके विशेष प्रकार के बीज से उन्हीं पेड़ों का जन्म होता है। When Adam's children are like Adam, we can't blame God. और आदम जैसा है और आदम के कारण आदम की संतान भी आदम जैसी है, तो इसके लिए हम परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। There's a first question answered. I think hope it is clear to you. और ये पहले सवाल का उत्तर है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझे होंगे। And second question, I said that's the bad news. God punishing a sinful people is a bad news. और बुरा समाचार हम देखते हैं प्रियो ये है कि परमेश्वर पाप में व्यक्ति को दंडित करते हैं। ये किस प्रकार सही है। So God punishing is not bad news.
और परमेश्वर जो है किसी बुरे समाचार को के लिए वो दंडित करें, ये सही नहीं है। The if you carefully understand, holy God, a righteous God, has to definitely do judge impartially. और अगर आप देखेंगे तो अगर परमेश्वर पवित्र है और वो धर्मी है, तो जरूर उसे निष्पक्ष न्याय तो करना ही चाहिए। A good person must be rewarded, और अच्छे व्यक्ति को इनाम मिले, and bad person must be punished. और बुरे व्यक्ति को दंड मिले। If any person rapes someone, what the whole society says, hang him. और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बलात्कार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को समाज देखकर बोलते ही हैं कि इन्हें फांसी पे लटका देना चाहिए। No person in the society says that अरे चलो माफ कर दो छोड़ दो है क्या है ये सब ऐसी चलता है. और कोई भी समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि चलो इसको छोड़ दो, ये तो ये सब कुछ होता ही रहता है, ऐसा नहीं कहते हैं। Suppose there is a murder, he must be judged. और मान लीजिए अगर किसी की हत्या हुई है, तो वहां जरूर उसका न्याय होना चाहिए। Suppose there is some theft, it must be judged. और मान लीजिए कहीं पे चोरी हुई है, तो जरूर उसका वहां न्याय होना चाहिए। Then you cannot blame judge saying that judge is at fault. Why he's punishing so and so thief or so and so murderer or so and so person who cheated and things like that. और इसलिए हम यहाँ पे न्यायी को, अर्थात जो न्यायाधीश है, उन्हें हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि अरे भाई ये दंड क्यों दिया इन चोर लोग को, हत्या लोग को या धोखेबाज लोग को, ऐसा हम नहीं बोल सकते। If you speak from other side also, if holy and righteous God does not judge, then he is not a judge at all. और दूसरी तरफ से एक और बात भी हम बोल सकते हैं कि भाई जब परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, और वो अगर न्याय ही ना करे, तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि वो परमेश्वर। I think this is the second question is answered. तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके दूसरे सवाल का भी उत्तर मिल गया होगा। The bad news means how can human be delivered from the judgment of God, from the punishment of God? और इट इज अ बैड न्यूज अंकल। No, no, bad news means man cannot redeem himself. Man cannot escape himself from the judgment of God. और बुरा समाचार ये एक प्रकार से देखा जाए कि मनुष्य स्वयं क्षमा या छुटकारा वो अपने से नहीं पा सकता है। You may not be able to understand if I just stop there. और अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं यहाँ रोक सकता हूँ। No, no, no. If I stop here, you will not be able to understand. और अगर मैं आपको यहाँ से समझाना बंद कर दूं, तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। The punishment is when a person sins, he dies. और दंड क्या है कि जब मनुष्य पाप करेगा तो उसकी मृत्यु होगी। So that is the bad news. ये एक बुरा समाचार है। So what is that bad news? You are a sinner. Because of your sins, you are dead. और ये बुरा समाचार क्या है कि एक मनुष्य अगर पापी है तो उसकी मृत्यु होगी। If you can rectify yourself, you must be able to overcome death. और अगर आप अपने आप को सही करें तो आप मृत्यु से जय पा सकते हैं। Is there any person on the face of the earth who will not die at all? और ऐसा है कि या इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु ना होगी कभी? There is no one on the face of the earth who can postpone the death, who can cancel the death. और इस पूरी धरती पर एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो मृत्यु को टाल सके या उसको उसको उससे बच सके। So again, when Bible says that death is, explained in different ways. और अगर बाइबल में आप पढ़ें तो मृत्यु को भी बाइबल कई तरीके से बताती है। One is spiritual death, सबसे पहला है आत्मिक मृत्यु, and second one is physical death, दूसरा है शारीरिक मृत्यु, and the third one is eternal death. और तीसरा है अनंत मृत्यु। What is spiritual death? आत्मिक मृत्यु क्या होता है? Who can give life? जीवन कौन देता है? Who is the originator of life? लाइफ को देने वाला जन्मदाता कौन है? Bible says God. और बाइबल बताती है वो परमेश्वर है।
Adam and Eve, they rejected God. They said, no, leave us independent. We don't want you. We will not depend upon you. We don't need you. We will decide what is good, what is wrong. And we are gods by ourselves. और आदम हवा ने क्या कहा कि नहीं, हमें अपने स्वतंत्र होकर जीना है, हम सही और बुरे को जानते हैं, हमें अलग होकर जीना है। ऐसा उन्होंने परमेश्वर से अलग होने का विचार किया। In other way, they have disconnected themselves from the life of God. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वास्तव में वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। Bible says the day Adam and Eve ate the forbidden fruit, they died. और बाइबल बताती है कि जिस दिन आदम और हवा ने उस मना किए हुए वृक्ष के फल को खाया, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। So the immediate death was spiritual death. तो तुरंत जो मृत्यु हुई थी वो आत्मिक मृत्यु हुई थी। And after some time, they were physically dead. और कुछ देर के बाद जो मृत्यु हुई थी वो उनकी शारीरिक मृत्यु हुई थी। When Adam and Eve were created, they were not expected to die. They were not expected to be alienated from God. They were not expected to disconnect themselves from God. जस्ट अ मोमेंट। Yeah. Uh, what we were saying was when God created Adam and Eve, it's not God's intention that Adam and Eve should die. और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो ये परमेश्वर की इच्छा कभी भी नहीं थी कि आदम और हवा की मृत्यु हो जाए। And God gave Adam and Eve freedom. और परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वतंत्रता दी थी। If Adam and Eve were connected with God, they continue to live. There is no question of death at all. और अगर आदम और हवा परमेश्वर से जुड़े हुए होते तो उन्हें मृत्यु के में जाने का कभी कोई सवाल ही नहीं था। God expected Adam and Eve to be connected with God. They live because the resource of God is with them. And God and Adam and Eve, they fellowship together. They take journey together. और आदम और हवा अगर परमेश्वर से जुड़े थे तो वो हमेशा जीवित रहते, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवन से संबंधित स्रोत है वो हमेशा उनके पास रहता, और वो परमेश्वर की संगति में रहते। And at the same time, Adam and Eve were given freedom. If they want, they can disconnect themselves from God. If they want, they can continue to have fellowship with God and live. If they are disconnected, they will die. और उसी समय आदम और हवा इस चीज के लिए भी स्वतंत्र थे कि या तो वो परमेश्वर से अलग हो जाएं, वो भी उनके ऊपर निर्भर था, या फिर वो परमेश्वर की संगति में रह के उनके द्वारा जीवन को हमेशा प्राप्त करें, ये भी उनके ऊपर में निर्भर था। So that freedom was granted to both Adam and Eve. और ये स्वतंत्रता आदम और हवा दोनों को परमेश्वर ने दी थी। Please remember that Adam and Eve were not coins in the chess where God plays according to his will and wish. प्लीज जस्ट एक्सप्लेन अगेन। Coins in the that means God does not, remote control is not there with God. And God wanted Adam and Eve willfully be connected with God, right? Willfully worship God, willfully pray God, willfully fellowship with God. It's not God controlling like a computer and like a robot. ओके। तो परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा कि आदम और हवा को एक रिमोट के समान वो नियंत्रण में रखें, और जो कुछ परमेश्वर चाहे वो आदम और हवा उनके मर्जी के बगैर करते रहें। परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा, परंतु आदम और हवा को उनकी स्वतंत्र इच्छा दी, ताकि वो स्वतंत्र इच्छा के द्वारा परमेश्वर के साथ चलें और उनकी बात माने। So God categorically told them,
the day you eat the forbidden fruit, you surely die. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र रूप से यह आज्ञा दे रखी थी, चेतावनी दे रखी थी कि जिस दिन आप उस वृक्ष के फल को खाएंगे उस दिन अवश्य मर जाएंगे। We know that Satan interfered. We know that Genesis chapter 3 says that Adam and Eve believed Satan rather than God. और हम जानते हैं कि शैतान ने यहाँ पर अपने भूमिका निभाई, और उत्पत्ति 3 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार हवा ने शैतान की सुनी। Both ate forbidden fruit and Adam and Eve both died. और आदम और हव्वा दोनों ने प्रतिबंधित वृक्ष के फल को खाया और दोनों की मृत्यु हो गई। That is a spiritual death. इस मृत्यु को आत्मिक मृत्यु कहते हैं। That means they are alienated from God. They are not connected with God. The life of God is not, persuading them, and they are not walking together. और इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर से अलग हो गए, वहां से वो दूर चले गए, परमेश्वर का जीवन अब उनमें नहीं रहा, और वे अब एक अलग होके जीवन जी रहे हैं। In fact, God wanted to guide them what is right, what is wrong, and God wanted to provide them standards. Adam and Eve said, we don't need your standard. I am standard to myself. I know what is good, what is wrong, what is bad. I will do the way how I feel like. This is my life. Leave me alone. और परमेश्वर आदम और हवा को जरूर अगुवाई करते कि क्या गलत है क्या सही है, और परमेश्वर ने जो एक मापदंड मानक दंड तैयार किया था उसके अनुसार वो उनको दिए थे, किस माप से चलना है आपको। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया, परमेश्वर के उस मापदंड को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये हमारा जीवन है, हम देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे हम चलेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। That is what I am saying, that all human beings born on the face of the earth, born with sinful nature, means the nature of Adam and Eve, that I am God to myself, I am standard to myself, I don't need any other external agency, and I can manage my life. और हर मनुष्य पापमय स्वभाव के साथ पैदा हुआ, इसका क्या मतलब है कि आदम और हवा का स्वभाव उनके अंदर है, इसलिए हर व्यक्ति अपना खुद का परमेश्वर बन गया है, और वो कहता है मेरा जीवन है, मैं जैसे जीऊंगा, मैं जैसा चाहूंगा वैसा चलूंगा, ऐसा लोग सोचते हैं। That is called spiritual death. इसको आत्मिक मृत्यु कहते हैं। And then physical death means because you are alienated from God, because the life of God is not there with you, you will surely die. Physical और death. शारीरिक मृत्यु का मतलब क्या है कि अब तो परमेश्वर से अलग हो गए हैं, परमेश्वर का जीवन आपके साथ नहीं है, तो जरूर एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसे हम कहते हैं शारीरिक मृत्यु। And the Lord said to Adam and Eve, you are taken out of dust, you will become dust. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा कि तुम तो मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। Even today the same thing happens. If you bury, your dead body becomes dust. If you burn, it becomes ashes. That's it. और जैसे आज भी होता है कि लोगों की मौत होती है, अगर उन्हें दफना दिया जाता है तो उनका शरीर मिट्टी बन जाता है, और अगर उन्हें जला दिया जाता है तो उनकी शरीर राख बन जाता है। There are many philosophies saying that human being after death there is nothing. तो बहुत सारी दर्शन शास्त्र की बातें हैं, लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता है। But Bible says death is separation of soul and body. परंतु बाइबल बताती है कि वास्तव में मृत्यु जो है वो प्राण और शरीर का अलग होना होता है। Body can become either dust or ashes, but soul has no death. Soul is first born, but it continues. There is no death at all. That is personality. That is a real person, you and me. और प्रियो जो शरीर जो है वो नष्ट होता है तो मिट्टी में मिल जाएगा या तो राख बन जाएगा, लेकिन जो प्राण होता है वो कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और वो हमेशा जीवित रहता है। Please remember, every sin that affects soul, not just body. और एक बात याद रखिएगा कि सभी जो पाप है वो सीधे हमारे प्राण को प्रभावित करते हैं, शरीर को नहीं। There is much to say about this because due to the lack of time, let me move little further.
और ये सब चीजों के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी के कारण हम आगे चलेंगे। Bible says God loved us so much that he gave us his own dear son Jesus Christ. Whoever believes in him should not perish but have eternal life. और परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पा सके। In the Bible, God introduced himself as God the Father परमेश्वर ने बाइबल में अपने आप को पिता परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है, and God the Son Jesus Christ और यीशु मसीह को पुत्र परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है, and Holy Spirit. और तीसरा पवित्र आत्मा है, जिसे पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है। So triune God, इसलिए हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। not three gods, यहाँ तीन परमेश्वर नहीं है, not one God becoming three different, doing three different roles. और यहाँ पे एक ही परमेश्वर नहीं है जो तीन अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। As God one in his deity, लेकिन परमेश्वर अपने देवत्व में तो एक है, but as persons three in persons. परंतु व्यक्तित्व में वो तीन व्यक्तित्व के रूप में है। It's very difficult to understand the depth of this Trinity principle or Trinity that is recorded indirectly in the Bible. और इसीलिए त्रिएकता का जो सिद्धांत है उसके बारे में जानना बहुत कठिन है, क्योंकि ये बाइबल में सीधे रूप में नहीं बताया गया है। Those who do not that God is triune God, there is no gospel at all. और अगर कोई कहे कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर नहीं है, तो वहां पे हम ऐसा कोई सुसमाचार नहीं सुना सकते फिर। If only you believe God of the Bible is triune God, then only there is gospel for you. और अगर आप विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, तब What आपके is पास what is gospel? सुसमाचार क्या है? Good news. अच्छे समाचार को हम सुसमाचार What कहते is हैं। bad news? बुरा समाचार क्या है? You are born, you have committed sin, you are a sinner, and you have to pay for your sins in the eternal fires of hell. और बुरा समाचार क्या है? बुरा समाचार यह है कि मनुष्य पापी है और उसने पाप किया है, और इसकी कीमत के रूप में उन्हें अनंत आग में जाना पड़ सकता है। You can't help yourself, you can't save yourself, and none on the face of the earth can save you. और प्रियो, कोई भी व्यक्ति स्वयं को नहीं बचा सकता, स्वयं के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति दूसरों को नहीं बचा सकता, As much as overcoming the death. और कोई भी जो है मृत्यु के ऊपर जय नहीं पा सकता। What the good news is, God the Creator, God the Spirit became human. That is Jesus Christ. और अच्छा समाचार क्या है? वो ये है कि जो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया वो है यीशु मसीह। Jesus Christ is both God and man. इसलिए यीशु मसीह एक ही वक्त में परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। Jesus is the name as a human. और यीशु मसीह के बारे में देखेंगे तो यीशु जो है मनुष्य का नाम है, We find in Matthew's Gospel, chapter 1 and verse 21. जो कि मत्ती 1 के 21 अध्याय में हम देख सकते हैं। Jesus, because he forgives his people from their sins. और चूंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को उनकी पाप की क्षमा दी है। And Jesus, the other name is also Savior. Joshua, Savior. ये इसलिए यीशु मसीह को हम अलग से इस नाम से पुकार रहे हैं, उद्धारकर्ता अर्थात यीशु। Christ is the anointed one. In the meaning of Christ, it's Christ is the origin from Greek. Christ means anointed one. और मसीही जो शब्द है वो एक यूनानी शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। So anointed one means the Son of God, the Son of Man. और अभिषिक्त का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। The Son of God is a title for God.
The Son of Man is also a title for God. और जो परमेश्वर का पुत्र है और साथ ही मनुष्य का जो पुत्र है वो परमेश्वर के एक नाम है। Jesus is the name as human when God became human. और यीशु मसीह एक नाम है मनुष्य का जबकि परमेश्वर मनुष्य बने तब के लिए। Why God has to become man? और परमेश्वर को मनुष्य बनना क्यों पड़ा? He became human so that the price for all human being for their sins, he was offered on the cross of Calvary as a sacrifice. और यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में क्यों आना पड़ा? ताकि वो सभी मनुष्यों के लिए पाप के लिए कीमत चुकाने के लिए क्रूस पे बलिदान कर सकें। God cannot die. परमेश्वर कभी मर नहीं सकते। God cannot have blood. परमेश्वर का कभी कोई खून नहीं होता है। Because God is a spirit, non-physical, metaphysical. क्योंकि परमेश्वर जो है आत्मा है, उनका कोई शरीर नहीं है, वो कोई पदार्थ नहीं है। And because humans are to be redeemed, humans are to be saved, humans are to be forgiven, for that reason God became human. और क्योंकि मनुष्य को छुटकारा पाना था, पापों की क्षमा पानी थी, उसको शुद्ध होना था, इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बन के आना पड़ा। It is because man was made in the image of God, God could become man. If man was not made in the image of God, God cannot become man. और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया होता तो कभी भी परमेश्वर इस धरती पे मनुष्य बन के नहीं आ सकता था। Jesus is Christ because Jesus was born to Virgin Mary 2000 years back. It is a historical fact. और यीशु जो है मसीही क्यों है? क्योंकि वो 2000 साल पहले कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिए। Jesus Christ is God man. और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर मनुष्य है। But Jesus Christ humbled himself so much so that when he lived as ordinary human being, he did not took the privileges of being, he did not utilize, he did not apply the privileges of God, but he lived as an ordinary human being so that he will be a role model for each and every one of us. और यीशु मसीह नम्र दीन हो गए। वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिए। और वो चाहते तो उनको सौभाग्य था, वो तो परमेश्वर के जैसे रह सकते थे, परमेश्वर होने के कारण वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य बनकर जिया ताकि वे लोगों के लिए एक आदर्श नमूना बन सके। For example, उदाहरण के लिए God is almighty. परमेश्वर सामर्थी है। Nothing is impossible to God. परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। Jesus Christ is God, यीशु मसीह परमेश्वर है, but he did not utilize, he did not, function that particular dimension being God, but he lived as an ordinary human being like you and me. और उन्होंने परमेश्वर की इस महान जो गुण है उसको अपने लिए उपयोग नहीं किया, परंतु हमारे समान एक साधारण मनुष्य बन के इस धरती पे वो जिए। But God cannot undo himself as God. और लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने आप को परमेश्वर नहीं है बोल के अपना इनकार नहीं कर सकते। God continues to be a God. परमेश्वर परमेश्वर ही रहता है हमेशा। So God cannot have any disconnection in his life because God cannot die. क्योंकि इसीलिए परमेश्वर कभी भी पृथक अलग नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है। Some people think that, Jesus Christ, by doing good and being good, suddenly after some time he became God. No, that is wrong. और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत भले व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए वो बाद में परमेश्वर बन गए। No, no, no. God continues to be God. ऐसा नहीं है, परंतु वो परमेश्वर थे और परमेश्वर परमेश्वर ही रहता है। One of the God's attributes are God is immutable, God does not change.
और आप जानते हैं कि परमेश्वर का एक गुण है कि परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, वो कभी बदलता नहीं है। But God's personality never changed. और एक बात याद रखना है हमें कि परमेश्वर जो है कभी भी Personality, व्यक्तित्व. नष्ट नहीं। ये संकल्प है संकल्प। परमेश्वर हमेशा एक सा रहता है और उसका जो व्यक्तित्व है वो बदलता नहीं है। So he is simply non-physical to physical. He became non-physical to physical. That's all. और परमेश्वर जो है वो जो शारीरिक रूप में पहले नहीं था, वो बाद में शारीरिक रूप में आया। So if you read all four Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, those four Gospels attest the lifestyle of Jesus Christ, that he lived on the face of the earth 2000 years ago for about 33 and a half years, a pure life, a holy life, and he was never contaminated. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में चारों सुसमाचार में जो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के जीवन की पूरी जो दिनचर्या के बारे में लिखा है कि उनका दैनिक जीवन कैसा था, उसकी गवाही लिखी है कि वो शुद्ध थे पूरे जीवन भर। 33.5 साल जो उन्होंने बिताया इस धरती पर, वो शुद्ध थे, पवित्र थे, और उन्होंने अपने आप को कभी भी अशुद्ध नहीं किया। Jesus' birth is not of a sudden happening. और यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी। There are, we have already discussed that, his birth was prophesied, where he will be born was prophesied. और हम जानते हैं कि प्रभु से यीशु मसीह की जन्म के बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी, और उनका जन्म कहाँ होगा वो भी पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। How he will live, that was also prophesied. यीशु मसीह का जीवन कैसे रहेगा, कैसे वो जिएंगे, उसकी भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। How he will be sacrificed, that was also prophesied. और वो कैसे वो अपना बलिदान करेंगे, इसकी भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। Even the process of crucifixion was also prophesied. और यहाँ तक कि क्रूसीकरण उनका होगा, उसकी भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। And Jesus offered himself as a sacrifice on the cross of Calvary. और यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान के रूप में दे दिया। As human, he died, मनुष्य के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। and after 3 days again, he resurrected victoriously from the grave. और 3 दिनों के बाद मृत्यु में से विजयी रूप में वो जी उठे, उनका पुनरुत्थान हो गया। And he was ascended to heaven. और वो स्वर्ग उठा लिए गए। It was recorded in the Bible that Jesus sat at the right hand of the God Father. और ये बातें बाइबल में लिखी हुई है कि वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। And he is going to come again second time. और ये भी लिखा है कि वो फिर से दूसरी बार आएंगे। When Jesus comes second time, जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, those who accepted Jesus Christ as personal savior, they will be risen again from the death. और जितने लोग व्यक्तिगत उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए होंगे, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय जी उठेंगे। Whatever death they had, whatever the situation they went through, they were burnt or they were buried, or whatever may be the situation. Bible says those who are dead, they will rise again. Those who are died in Christ. और चाहे उनकी मृत्यु होने के बाद उन्हें जलाया गया हो या दफनाया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह में मरे हुए होंगे वो फिर से जिलाए जाएंगे। The correct word recorded in the Bible in 1 Corinthians chapter 4 is those who slept in Jesus Christ, not died in Christ. और जैसा कि वचन में आप पढ़ सकते हैं, इट इज फर्स्ट कुरिन्थियन और फर्स्ट थिस्सलुनीकियन अंकल। 1 Thessalonians chapter 4. ओके। और पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय में आप देखेंगे जहाँ लिखा है यीशु मसीह के लोग मसीह में सो जाते हैं। So those who are living, they will not die, but they will be, they will, they will join with Christ. इसलिए जो लोग मसीह में जीते हैं वो मरेंगे नहीं, परंतु मसीह के साथ मिल जाएंगे। They will be translated into a glorious body. और वहां लिखा है कि उनका महिमामय शरीर में रूपांतरण हो जाएगा। Bible says that they will live in it, they live for eternity.
और लिखा है बाइबल में कि वे अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। In the book of Revelations, it was clearly explained how heaven would be. और प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट लिखा है कि स्वर्ग कैसा होगा। There is no sin, no tears, no death, no sun, moon, stars, and God and His people, and there is eternity. और प्रकाशित वाक्य में जैसे स्वर्ग के बारे में लिखा है, वहां कोई पाप नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, सूरज और चांद की वहां जरूरत नहीं होगी। But those whose sins are not forgiven, those who do not accept Jesus Christ as personal Savior, they have to pay their own sins which they have committed and its consequences. और उन लोग के बारे में लिखा है जो लोग पाप में क्षमा नहीं पाएंगे और अपने पापों में ही मर जाएंगे बिना उद्धार पाए, उनके लिए लिखा है कि वो इसके कीमत को उन्हें एक दिन चुकाना पड़ेगा। That is the good news we are presenting. ये है एक अच्छा समाचार जिसे हम प्रस्तुत करते हैं। We are not just saying that you will have heaven right after death. हम ये बात नहीं बोलेंगे कि भैया आप मर जाएंगे और मरने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाएगा, That is anyway sure, no doubt about it. और इसमें कोई शक नहीं है ऐसा होगा। But real conversion is right on the earth. परंतु वास्तविक परिवर्तन जो है यहीं पे पृथ्वी में ही हो जाता है। What is that conversion? और वो परिवर्तन क्या है? Not from one religion to another religion. एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने की बात नहीं है ये। Bible says conversion means death into life. परिवर्तन का मतलब होता है, बाइबल बताती है, मृत्यु से जीवन की ओर जाना। Conversion means darkness into light. परिवर्तन का मतलब होता है अंधकार से ज्योति की ओर जाना। A sinner as a saint. और एक पापी का भक्त या संत बन जाना। Because by faith, not by works, by faith in Jesus Christ, what He did on the cross of Calvary, your sins are forgiven by faith 2000 years ago with the precious blood of Jesus Christ. और विश्वास के द्वारा, ना कि हमारे कर्मों के द्वारा, जो हमने यीशु मसीह पर किया, उसके क्रूस पर किए हुए बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है, जो हमारे लिए प्रभु ने 2000 साल पहले किया, और अपने बहुमूल्य लहू से हमारे गुनाहों को क्षमा किया। Because you are cleansed with the precious blood of Jesus Christ, because your sins are forgiven, you will have connection, reconnected with God, and the life of God will flow through into your life. That is called eternal life. और चूंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपकी पापों की क्षमा हुई है और आप परमेश्वर से फिर से जुड़ गए हैं, इसलिए परमेश्वर का जीवन आप में बहेगा, उनका जीवन आप में आएगा। इसी को अनंत जीवन कहते हैं। So then God will help you to live a holy life right on this wicked world. और तब है कि परमेश्वर आपको इस संसार में पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करता है। You will be able to pray and God will hear your prayer. God will answer your prayer. और जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। You know who God is as you keep reading the Bible and you worship God. और आप लगातार बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर को जानते हैं कि वो कौन है, और आप उसकी आराधना करते हैं। By faith, you walk with God. और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। By faith, you keep growing in your spiritual understanding day by day. और आप विश्वास के द्वारा प्रतिदिन धीरे धीरे करके आत्मिक समझ में बढ़ते जाते हैं। The problems all people have on the face of the earth, you will also have. इस धरती में बाकी जितने लोगों को जो कुछ समस्या है, वो समस्या हमें भी, हमारे जीवन में भी है। Don't ever think that just because you become a disciple of Jesus Christ, all your problems are solved. No. और ये कभी मत सोचिएगा कि आप यीशु मसीह के चेले बन गए, इसका मतलब आपकी सारी समस्या खत्म हो गई। In fact, you will have more problems. परंतु इसके उल्टा है कि हो सकता है आपको बाकी लोगों से और ज्यादा समस्या हो, You have to carry your cross. क्योंकि आपको अपना क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। You have to deny, if you have to lie. और आपको झूठ बोलने के लिए इनकार करना पड़ेगा। If you have to do any corruption, you have to say, I will not do corruption. और अगर आपको कोई कहेगा कि आप भ्रष्टाचार करो, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं भ्रष्टाचार में साथ नहीं दूंगा। Then the whole world will be against you. और तब ये सारी धरती के लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। You have to face the wrath of the people of God in the society.
People, no, और not people of God. The people who are against God, you have to face all that music. और जितने लोग परमेश्वर के विरोध में दुनिया में खड़े होंगे, उन सभी लोगों के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। But the beauty is परंतु सुंदरता की बात यह है God's presence you will enjoy. कि परमेश्वर की उपस्थिति का आप हमेशा आनंद ले सकते हैं। The strength of God, the grace of God, the mercy of God, the power of God enables you to carry forward in spite of all these difficult and most difficult situations joyfully without any regret. और प्रियो, परमेश्वर जो दया करता है, बल देता है, और उसकी जो शक्ति हमारे जीवन में आती है, उसकी महिमा हम पे प्रकट होती है, उसका अनुग्रह मिलता है, ये हमें आगे बढ़ने में हमेशा मदद करेगा। चाहे हमारे चारों तरफ कितनी भी समस्या क्यों ना होती रहे, फिर भी हम आनंद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। You will have hope, that one day when you die, you will be there with God for eternity. और आपके पास एक आशा है कि एक दिन जब आप इस संसार से चले जाएंगे, हमेशा के लिए आप अपने परमेश्वर के पास रहेंगे। That is the good news. ये है अच्छा समाचार। That is the real conversion we are talking about. ये है वास्तविक परिवर्तन जिसके बारे में हम बातें करते हैं। The gospel which we are talking about is not our gospel that is recorded in the Bible, in the Word of God. और ये जो सुसमाचार, ये हमारा सुसमाचार नहीं, हमारे द्वारा दिया सुसमाचार नहीं है, ये बाइबल में जो प्रस्तुत है वो सुसमाचार है। We are disciples of Jesus Christ. Whatever our master said, we are simply for repeating in the local language, in a language what we can normally understand. और हम चेले हैं यीशु मसीह के, तो स्वाभाविक है वो हमारा स्वामी है, तो हम उसकी बातों को मानेंगे। इसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं, ये सुसमाचार है। Same truth, languages can be umpteen number of languages. और सच्चाई तो एक ही है, लेकिन जितनी सारी भाषाएं होंगी उतनी सारी भाषाओं में हम इस सच्चाई को बोल सकते हैं। Don't ever think that one truth for Indians and other truth for Americans and a different truth for Australians, and then there are a number of countries. There is no different truths. One and only truth. Language may differ, but the same Jesus Christ, the same truth, absolutely the same. और ये कभी मत समझिएगा प्रियो कि एक सच्चाई भारत के लिए अलग है, एक सच्चाई अमेरिका के लिए अलग है, एक सच्चाई ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग है। ऐसा नहीं है, सच्चाई एक ही है जो सारे देशों के लिए बराबर है, और वो इसी प्रकार यीशु मसीह भी एक है जो सारे संसार के देशों के लिए एक ही है। If you want to know more about it, अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, if you want to confirm what we are saying is true or false, और आप इस बात को स्पष्ट रीति से पक्के होना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है गलत है, you can order for Bible right in the Amazon. You will get it. और आप अमेजोन से बाइबल मंगा सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। Read for yourself. अपने लिए पढ़िए। You pray a sincere prayer. Lord, I have heard this. I would like to know the truth. Why should I be deceived by the different philosophies on the face of the earth? I am confused. और आप बड़ी गंभीरता से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सहायता करे, कि आप दुआ करें कि परमेश्वर इस संसार के बहुत सारे दर्शन शास्त्रों से मैं क्यों शंका में पड़ जाऊं। Jesus, if you are true God, speak to me. यीशु मसीह, अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं तो मुझसे बातचीत कीजिए। I'm sure God who spoke to me, who spoke to brother Anil Khare, who is translating, he will speak to you also. और मैं विश्वास करता हूं कि जिस परमेश्वर ने मुझसे बात किया, अनुवाद करने वाले भाई अनिल से बात किया, वही परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। Suppose we will not tell you anything. और एक बार के लिए समझिए कि मान लीजिए कि हमने आपको कुछ भी नहीं बताया, Then you may confront with us, brother, why you did not tell the truth. You know the truth. You should have told me. और आप एक दिन जरूर कहेंगे कि भैया, आपको जब कोई चीज सच्चाई मालूम थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। Now when we are saying, और तब हम कह सकते हैं, some of the people say, why you talk about all these things? कोई हमसे एक बात पूछ सकता है कि भाई ये सब बातें क्यों बताते रहते हो। It is the truth. People should know. ये तो सच्ची बात है, लोग तो इसे जानते ही हैं, आप इसे क्यों बता रहे हैं। Okay, if you think that this is not truth, अच्छा ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि चलो ये बात सच नहीं है, you make a thorough search. तो अगर आपको लगता है कि ये बात सच नहीं है, तो जरूर आप इसकी अच्छे से खोजबीन करें। God has certain qualities.
क्योंकि परमेश्वर का कुछ विशेष गुण है। A sinner like you and me cannot be God. आपके और मेरे जैसे पापी परमेश्वर नहीं हो सकता। Ordinary human being like you and me cannot become God. आपके और मेरे जैसे साधारण मनुष्य परमेश्वर नहीं बन सकता। A person who can die cannot become God. मनुष्य जो मर जाता है वो कभी परमेश्वर नहीं बन जाता। So may the Lord help you. May the Lord lead you and guide you. परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे। This is just a choice. We are not forcing. ये एक विकल्प है, आपके ऊपर इसका कोई भी दबाव नहीं है। God has given us burden and concern, and so out of love and conviction, we are pleading with you. Why do you land up in eternal fire of hell? और ये मेरे हृदय का और हमारे हृदय का बोझ है, ये परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम है, और इसीलिए हमारे अंदर से एक आपके लिए निकलने वाला एक निवेदन है कि आप क्यों अनंत आग में, नरक में नाश हो। Why don't you try once? क्यों ना आप एक बार कोशिश करें। You must have tried a number of things. आपने न जाने कितने सारे चीजों के लिए कितने बार कोशिश की होगी। Just try once and see whether this is true or false. एक बार यहाँ भी कोशिश कीजिए, ये जानने के लिए कि ये सच है या गलत। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। May I request Anil Khare to kindly pray for each and every one of us who is listening to this gospel. आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, आज जो समाचार हमने सुना है उसके लिए हम मिलकर दुआ करें, परमेश्वर हमारी सहायता करें। After which Arvind Suryavanshi will pronounce benediction. इस प्रार्थना के बाद में हमारे बीच में ब्रदर सूर्यवंशी जी हैं, वो आशीष वचन दे देंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद हमारे जीवित, खुदावंद और पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं बाइबल के वचन के अध्ययन के द्वारा। आज हमने सुसमाचार के बारे में और गहरी बातों को सीखा परमेश्वर की, किस प्रकार इस संसार में पाप में स्वभाव जो आदम के द्वारा आता है, उसके द्वारा मृत्यु जीवन में आती है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा कैसे इस दुनिया में हमें जीवन मिलता है, इस सुसमाचार को हमने देखा, उसकी सच्चाइयों को देखा है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। मृत्यु कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हमने देखा प्रभु जी, और हम पर अब दया करें कि हम कभी भी आपसे अलग होके आत्मिक मृत्यु में न जाएं, कभी भी हम इस संसार में अनंत काल की मृत्यु में न जाएं, परंतु हमेशा हम आपके द्वारा प्राप्त होने वाला जीवन को प्राप्त करके एक दिन आपके संग जाके अनंत जीवन को पा सके। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, जो अच्छे समाचार के रूप में आपने हमें दिया है। ये अच्छा समाचार और भी प्रिय भाई और बहनों को मिले और उन्हें सत्य का वचन समझ में आए, उनके लिए उनकी समझ को खोलिए। सभी बातों के लिए धन्यवाद कि आपने प्रार्थना हमारी सुनी है। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांग लेते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। हमारा प्रभु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हम जो आज इस बाइबल स्टडी में इकट्ठे हुए हैं, वो प्रभु के लोग और इस संसार में जहाँ जहाँ प्रभु के लोग, उन सब के साथ अभी भी हो और युगानी होती रहे। आमीन।